Hello students, welcome back. Today we are going to take one more important topic in subject English, which is called clauses. Clauses. This particular topic comes under grammar portion, and this topic is given to the class 8 students of higher English 9 standard and 10th standard semi and high. So this is one of the very important topic and very scoring topic, but many students, they find this particular topic very confusing. Initial few statements, they do it, but later on when subtypes of clauses comes, then the jumbling starts. People used to leave this topic. They don't understand what is going on. So we will clear all the confusion in this video lecture regarding clauses. You will be able to recognize clauses, its subtypes very easily on words. So we will see what do you mean by clauses. So clauses is a group of words. It is group of words. Clauses simply is a group of words. एक से ज्यादा दो वर्ड्स है किसी सेंटेंस के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर, तो वो कहलाएगा क्लॉज. बट दिस definition is incomplete without. It is a group of words having a predicate. I'll tell you what predicate is. A predicate it is a clauses, it is a group of words having a predicate in a sentence. So ये जो भी होता है clauses, ये किसी sentence के अंदर आता है, किसी statement के अंदर आता है. Okay, so you will find more than two words, obviously. So that means whenever you find more than two words or more than one word, it is called as clause. Very simple. Okay, definition is clear. But group of words तक तो ठीक है. What about predicate? तो इसकी कुछ कंडीशन है कि क्लॉज कब होगा. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे, बट वो क्लॉज कब कहलाएगा? जब प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें आती हैं. एक आता है वर्ब, दूसरा आता है ऑब्जेक्ट. So predicate मतलब combination of verb and object. Is it okay? So group of words तो होंगे, साथ में predicate भी होगा और verb और object तो हो गया. लेकिन verb मतलब action, object क्या है? जिसके ऊपर action हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है? There must be some subject, correct? So it is a group of words having a predicate and a subject. Now the definition is complete. Clause in a sentence will be called as when that particular group of words will be having at least one subject and predicate. Predicate में दो होंगे, verb and object. So that particular group of words will be called as clause. So predicate मतलब verb होगा और object होगा. ठीक है, predicate समझ में आ गया. So हम in general इन दोनों को एक में कंबाइन कर predicate बोलते हैं. So कहीं ये शब्द आ गया, ऐसा कुछ वर्ड आ गया तो कंफ्यूजन नहीं करना कि predicate क्या है. इसके बाद इसको दिमाग में रखना हमेशा. predicate मतलब combination of verb and object. ठीक है, क्लॉजेस का डेफिनेशन हमने देख लिया.
ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, यहाँ में ये भी ठीक है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन उससे पहले इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्लॉज कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, I love you. So we have a subject. Yes, I is a subject. Subject. There must be one predicate. There must be a predicate. So ये जो पूरा है, सब्जेक्ट के बाद जो भी बचते हैं वर्ड्स, that will come under predicate, समझने के लिए। सो ये होगा predicate, ठीक है। predicate मतलब जिसके जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हो गया predicate। सो सब्जेक्ट है, predicate भी है। predicate के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास वर्ब है लव और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, दैट ऑब्जेक्ट इज यू। इज इट ऑलराइट? सो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तीन, ये कहलाएगा क्लॉज। लेकिन ये क्लॉज किसके अंदर है? एक सेंटेंस के अंदर है, और उस सेंटेंस का एक मीनिंग भी है, कंप्लीट थॉट है। आई लव यू, मैं प्यार करता हूं या करती हूं। सो एक कंप्लीट थॉट हमें दे रहा है। याद रखना इस बात को, कंप्लीट थॉट में क्यों बोल रही हूं, ये आगे काम में है। इज इट ओके? नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, ठीक है। इस पूरे इसको बोलेंगे सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर क्या होंगे? क्लॉज होंगे। सो क्लॉज कैन हैव meaningful explanation, complete thought, okay, or cannot have a complete thought. It will be complete or incomplete, but sentence will always have a complete meaning. Clause may not have that. How? We will see it in following sentences. So one more. She ate apple in the evening. Okay? So according to clause क्या होना चाहिए? There must be one subject. Yes, we have a subject. Is it alright? Subject जो एक्शन करने वाला है, जो वर्ब हमारी एक्शन है, ठीक है, वो करने वाला सब्जेक्ट है हमारे पास। उसके बाद जो बचता है वो होता है यस प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में दो चीजें होंगी, एक होना चाहिए वर्ब एक्शन और दूसरा होना चाहिए ऑब्जेक्ट। सो एक्शन है हमारे पास एट, दिस इज वर्ब। एट पास्ट टेंस ऑफ ईट। सो देयर इज वन एक्शन दैट इज वर्ब, एंड क्या खा रही है? क्या खाया था? एप्पल इन द इवनिंग। सो एप्पल इन द इवनिंग, दिस वन, it will be called as object. Is it alright? Can you understand now कि clause क्या होता है? clause के अंदर एक subject होना चाहिए और predicate होना चाहिए, और predicate में क्या होना चाहिए? तो verb होना चाहिए और object होना चाहिए. It is very important. Then and then that particular sentence will come under any type of clause. This is the how we identify the clause. First step. We will see sentence number 3. Priyanka Chopra is a splendid actress and a
क्लॉज का एग्जाम्पल है कि नहीं? ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए. सो वी हैव अ सब्जेक्ट प्रियंका चोपड़ा. वेरी करेक्ट. ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. अब बचा हुआ सब्जेक्ट के बाद जो भी रहता है वो क्या होना चाहिए? प्रेडिकेट. सो ये हो गया प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट के अंदर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए वर्ब जो कि एक्शन है, जो ये सब्जेक्ट करने वाला है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो एक्शन बताई जाने वाली है. ठीक है. सो इज द वर्ब. है. प्रियंका चोपड़ा स्प्लेंडेड, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, और एक बहुत अच्छी पर्सन है, गुड पर्सन, अच्छी व्यक्तिमत्व की, अच्छा व्यक्तिमत्व है उनका. सो इज अ वर्ब. और बचा हुआ क्या है? अ स्प्लेंडेड एक्ट्रेस एंड अ गुड पर्सन. दैट विल कम अंडर ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड कि क्लॉज क्या होगा? क्लॉज क्या होगा? क्लॉज होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Predicate having one verb and object in a statement or sentence. That is very important because statement or sentence will give you a complete thought. Clause may not give you the complete thought. Is it all right? So this is about the clauses, its definition. It is very easy, and how to identify a clause. Is it okay? So next, I won't erase the definition, having some purpose, so that you will have the definition in front of you. You can recall it any time and no need to recite the definition. Just go through example, you will understand very easily. So clauses is again a group of words having a subject and predicate in a statement. We have seen 3 examples. There may be n number of examples. You can go through any textbook of English. Okay, so that you will find n number of examples. Subject, having predicates, object, and verb. So clauses are divided into 2 further types. Clause. One is called main clause or independent clause, and another is subordinate clause or dependent clause. Now we know what do you mean, what is the meaning of clause. Yes, what are its subtypes? Main clause है, subordinate clause है, या फिर independent clause है, dependent clause है. So ये जो clauses है ये किसका हिस्सा है? Sentence का हिस्सा है. So जैसे मैंने कहा था एक थोड़ी देर पहले कि clauses can give you complete thought, complete information about the sentence, or may not give you the complete information about the sentence. So depending on this fact, the clauses are divided into 2. So in a main clause, structure of sentence can be like this. There will be subject, of course,
Remember this. मेन क्लॉज के अंदर या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा एक जो कि होना चाहिए। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का सेंटेंस ऐसा ही होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा डजंट मैटर, बट ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट थॉट देंगे, एक पूरी इंफॉर्मेशन देंगे उस सेंटेंस की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, I laughed. मैं हंसी थी, लाफ ईडी। ठीक है, सो आई क्या है, सब्जेक्ट है, अग्री। लाफ क्या है, हंसना, वर्ब है। क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट भी है और प्लस वर्ब है, दोनों मिलकर एक कंप्लीट थॉट दे रहे हैं। मैं हंसी थी, आई लाफ्ड, मैं हंसी थी। क्या है इसके अलावा और किसी वर्ड की और किसी और दूसरे चीजों की जरूरत है क्या इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग बाहर निकलने के लिए? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड्स है, 2 वर्ड्स है, मतलब ये क्लॉज है। क्लॉज के अंदर क्या है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए मेन क्लॉज के अंदर। ठीक है, और वो क्या देना चाहिए, कंप्लीट थॉट देना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। जो सेंटेंस का मीनिंग है वो कंप्लीट देना चाहिए, जो कि ये दे रहा है। एक और, लेजी स्टूडेंट्स whines. Okay, can you guess the subject? Students, but students कैसे है, lazy, आलसी। So this is a subject. Okay, क्या करते हैं वो, whines मतलब whine is a, I will write it here. whine का मीनिंग a long pitch, complaining cry. मतलब नहीं ना मैडम ऐसा नहीं, नहीं ना सर ऐसा नहीं। ये जो तरीका है स्टूडेंट्स का, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं जमेगा सर, मुझे नहीं जमेगा मैडम, ऐसे कैसे, इतना सारा होमवर्क है, एंड ऑल। ये जो तरीका है बात करने का स्टूडेंट्स का, वो उसे कहते हैं वाइन्स। ठीक है, सो लेजी स्टूडेंट्स अक्सर ये करते हैं। सो वाइन्स मतलब ये, और ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो क्या हमारे पास है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, कंप्लीट थॉट दे रहे हैं। जो आलसी बच्चे हैं वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, दे वाइन्स, वाइन। ओके, सो अपने आप में कंप्लीट थॉट है। इसका मतलब ये क्या है, मेन क्लॉज है। क्या इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर पूरी इंफॉर्मेशन दे दे, पूरा थॉट दे रहे हैं, कंप्लीट थॉट दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ऐसे जो सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर कंप्लीट थॉट देते हैं वो आते हैं मेन क्लॉज के अंदर। और ये अपने आप में एक सेंटेंस भी है, क्लॉज है, लेकिन क्लॉज सेंटेंस का पार्ट है, उससे अलग नहीं हो सकता। इज इट ऑल राइट? ओके, नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सो एज द नेम सजेस्ट, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये किसी ना किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, क्योंकि इसे तो जरूरत नहीं है किसी और क्लॉज की, लेकिन इसे जरूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपना थॉट कंप्लीट करने के लिए। सो ये हेल्प लेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज की या फिर मेन क्लॉज की। सो कैसे, इसका जो है मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूं, so that I can write it very well.
इसे कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये होगा, दो तरह से हो सकता है। पहले होगा मेन क्लॉज, ठीक है, प्लस साथ में कोई फायर, मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, और प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जिसके अंदर हो सकता है वर्ब, हो सकता है ऑब्जेक्ट, और कोई अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अदर वर्ड्स की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे होगा? मेन क्लॉज के अंदर, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर एक मेन क्लॉज होगा जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, जो अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, कंप्लीट थॉट देगा। लेकिन साथ में अगर मैंने कोई कंजंक्शन लगा दिया जो कि उसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस क्लॉज के अंदर आता है, इसीलिए ऐसा सबऑर्डिनेटर कहते हैं या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का काम क्या है? दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना, तो यही वो करने वाले हैं। ठीक है, तो एक कोई कंजंक्शन आएगा और साथ में जो क्लॉज जुड़ने वाला है, जो कि डिपेंडेंट है, वो आएगा, डिपेंडेंट सेंटेंस आएगा या डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, शुरुआत में हो सकता है कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जिसकी शुरुआत ही सबऑर्डिनेटर से हो। ठीक है, प्लस कॉमा रहेगा और मेन क्लॉज रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आप नेक्स्ट स्टेप में आगे जा पाएंगे, आइडेंटिफाई करना क्लॉजेस को। जब तक आप इन दोनों को आइडेंटिफाई करना नहीं सीख लेते कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इन दोनों का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सभी के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लॉजेस, ठीक है, या जो पढ़ने वाले हैं या जो रिफ्रेश करना चाहते हैं इस टॉपिक। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कीप these two things in mind always, because you are going to face exams one day. That is the fact. You cannot run away from it. This year you may not appear for the exam, but next year you have to. So always clear all the basics. Basics याद होना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक के। अगर ऐसे नहीं करते हो so you are in a trouble. So मेन क्लॉज हमेशा कंप्लीट थॉट देगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है इनकम्प्लीट थॉट दे। ठीक है, उसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज इनकम्प्लीट थॉट देगा। इनकम्प्लीट थॉट मतलब जो भी सेंटेंस, जो भी वो सेंटेंस का हिस्सा है, जिस भी सेंटेंस का हिस्सा है, वो अपने आप में पूरा मीनिंग समझ नहीं पाएगा, दे नहीं पाएगा। आप जब भी पढ़ोगे उसे कुछ अधूरा लगेगा कि ये क्या है, इसके साथ कुछ होना चाहिए, सो दैट, कुछ और मतलब कोई और सेंटेंस होना चाहिए, कोई और क्लॉज होना चाहिए, सो दैट उसका पूरा मीनिंग समझ में आ सके। कैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। So I'll write example here.
lazy students ओके। क्या ये क्लॉज है? होना चाहिए। क्लॉज की कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट तो है लेजी स्टूडेंट्स, ठीक है। वाइट मतलब हमारे पास वर्ब है। प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का एक हिस्सा है, वर्ब प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और चीज है, एज गिवन है। जब ये सेंटेंस यहाँ पर था लेजी स्टूडेंट्स वाइन्स, तब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एज जोड़ दिया, एज लेजी स्टूडेंट्स वाइन, जैसे ही एज मतलब जैसे लेजी स्टूडेंट्स आलसी बच्चे वाइन करना शुरू करते हैं, कंप्लेनिंग क्राई करना शुरू करते हैं, तो क्या आपको पूरा थॉट पता चला? इससे पूरी इंफॉर्मेशन मिली? इससे नहीं मिली। मतलब क्या हुआ? एज ये एक सबऑर्डिनेटर है, जिसके लगने से इसका जो कंप्लीट मीनिंग आ रहा था उभरकर, वो अभी इनकम्प्लीट थॉट की तरफ चला गया। मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का सेंटेंस है। इज इट ऑलराइट? सो ये किस स्ट्रक्चर में आता है? स्ट्रक्चर में आता है इस तरह के, जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और अगर इसके साथ में कॉमा जोड़ती हूँ और मेन क्लॉज लगा देती हूँ, तो तब जाकर ये एक कंप्लीट मीनिंग देगा। अभी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं। तो मैं अगर इसके साथ कॉमा लगाती हूँ, एज लेजी स्टूडेंट्स वाइल मैडम थ्रोज chalk eraser at their heads। So कॉमा लगने के बाद मेन क्लॉज आना चाहिए था। मेन क्लॉज मतलब जो पूरा थॉट दे, पूरी इंफॉर्मेशन दे। तो ये क्या है? मैडम थ्रोज। मैडम क्या है? सब्जेक्ट है मेन क्लॉज का। थ्रोज मतलब फेंकती है, डस्टर उठाकर फेंक देते हैं कि लेजी स्टूडेंट्स वाइन कर रहे हैं, ऐसे इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, लॉन्ग पिच कंप्लेनिंग क्राई, ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो वो क्या करती है? चॉक इरेजर मतलब डस्टर उनके सर की तरफ फेंक कर मारती है। तो जैसे ही स्टूडेंट ऐसा करना शुरू करते हैं, वाइन करना शुरू कर देते हैं, तब मैडम चॉक फेंकती है। अब जाकर ये जो एज लेजी स्टूडेंट वाइन है, इसका मीनिंग हुआ कंप्लीट। सो इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई एम इरेजिंग ओवर हियर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी के लिए, देन लेटर ऑन विल सी। नेक्स्ट एग्जांपल, till I laughed। till मतलब तब तक, I laughed मैं हंसी थी, मैं तब तक हंसी थी। कब तक हंसे थे आप? मैं तब तक हंसा था। कब तक? जब तक मेरा पेट दुखना शुरू नहीं हुआ, तब तक मैं हंसी थी। मतलब ये जो क्लॉज है till I laughed, एक सब्जेक्ट है जो कि क्लॉज की कंडीशन है, और एक वर्ब भी है जो कि प्रेडिकेट का हिस्सा है, लेकिन साथ में till लगा है। ये till क्या है? सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर है, और ये सबऑर्डिनेटर जुड़ जाने से ये जो पहले सेंटेंस हमने आई लाफ्ड लिखा था, till I laughed लिखने से ये बन गया हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज का या फिर डिपेंडेंट क्लॉज का। इसके साथ कुछ और क्लॉज जुड़ना चाहिए, मेन क्लॉज जुड़ना चाहिए, सो दैट ये अपने आप में पूरा थॉट दे सके, आपको बता सके। इज इट ऑलराइट? सो ये एज टिल, ये जो सबऑर्डिनेटर्स है, ये कब आते हैं? ये अक्सर आते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर, ठीक है। बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटर्स है। अब कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटर में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? अगर ये एक सेंटेंस से
समझाती हूं मैं आपको, यहां लिख रही हूं। You study well because you have to earn money। ठीक है, यहां एक बिकॉज करके आया है। तो जब जैसे मैंने कहा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब जब दो क्लॉजेस होंगे, एक मेन क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, दोनों को जोड़ने के लिए जब इस तरह का कोई कंजंक्शन यूज होगा, बिकॉज या टिल, एज, ऐसे कुछ कंजंक्शन बहुत सारे, आई टेल यू। ठीक है, जो कंजंक्शन यूज होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। लेकिन यही जब कंजंक्शन सेंटेंस के पहले आएंगे तब वो सबऑर्डिनेटर बन जाएंगे। बस यही एक फर्क है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। लेकिन पहचान कैसे है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की पहचान है कि कोई ना कोई सबऑर्डिनेटर या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में कोई सेंटेंस शुरू होगा, कोई क्लॉज शुरू होगा जो अपने आप में कोई कंप्लीट थॉट नहीं दे पाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। इज इट ओके? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ क्लॉजेस। पहले टाइप में मेन क्लॉज में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, कंप्लीट थॉट देगा सेंटेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ये उसकी मिनिमम कंडीशन है, ये होना ही होना चाहिए मेन क्लॉज के अंदर या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसके कोई टाइप्स भी नहीं है। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको इस क्लॉज की हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके कुछ टाइप्स भी हैं। टाइप्स हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको दिए हुए सेंटेंस में मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा है, या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए। लेट्स सी कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कुछ आपको होमवर्क करते हैं। So, sentence number 1, you just have to identify, underline main clause and underline in dependent clause. One was Jim's old watch that had been his father's and grandfather's. Okay, so try to identify कि कैसे। One was Jim's old watch. One सब्जेक्ट है, एक जो थी वो जिम की वॉच थी। ठीक है, एक वन वॉच जिम्स ओल्ड वॉच, जिम की ओल्ड घड़ी थी। दैट हैड बीन, जो किसकी हुआ करती थी, हिज फादर्स, उसके पापा की, और उसके नाना की या दादा की, ग्रैंड फादर्स। ठीक है, सो वन मतलब सब्जेक्ट है हमारे पास, वॉज क्या है, सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ होगा प्रेडिकेट। इज इट ऑल राइट? प्रेडिकेट होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, सो वन वॉज जिम्स ओल्ड वॉच, वन सब्जेक्ट वॉज क्या है, वर्ब है, था, थी, सॉरी, जिम की वॉच थी। क्या थी वो? जिम की ओल्ड वॉच, मतलब है ये ऑब्जेक्ट।
थी, वो जिम की पुरानी घड़ी थी, या वो जिम की पुरानी घड़ी थी। अपने आप में कंप्लीट थॉट दे रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन पता चल रही है ना कि जिम की पुरानी घड़ी थी, दैट्स इट। और किसी सेंटेंस की हेल्प की जरूरत है क्या इससे? नहीं है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड्स है, तीन कितने वर्ड्स है? 5 वर्ड्स, ठीक है, जो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ये किस में आएंगे? मेन क्लॉज में आएंगे। सो अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। सो वन वॉज जिम्स ओल्ड वॉच, ये जो सेंटेंस का हिस्सा है, क्लॉज है, वो पूरा मीनिंग दे रहा है अपने आप में, इसीलिए ये हो गया मेन क्लॉज। ठीक है, अब मेन क्लॉज तो पता चल गया, तो बचा हुआ क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑब्वियसली। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा किसी कंजंक्शन के साथ शुरू होता है, नॉट हमेशा, बट पहले हमने मेन क्लॉज शुरू कर दिया तो प्लस क्या आएगा? एक कंजंक्शन आएगा, क्योंकि हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इरेज किया है। मैंने 2 टाइप के स्ट्रक्चर बताए थे, उसमें से पहला वाला टाइप जिसमें मेन क्लॉज होगा प्लस एक कंजंक्शन आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट, और जो भी हिस्सा है क्लॉज का वो पूरा का पूरा। सो दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स। दैट हैड बीन मतलब वो हुआ करती थी, ठीक है, दैट हैड बीन। सो दैट क्या? दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स, जो कि उसके फादर की हुआ करती थी, जो कि क्या? जिम की घड़ी। तो ये जो क्लॉज का हिस्सा है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये हो गया सबऑर्डिनेट। और ये उसका कंजंक्शन है। इज इट ऑलराइट? इतना आसान है क्लॉज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना ही होना चाहिए। उसके बाद जो फर्दर टाइप्स आते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के, वो प्रैक्टिस का हिस्सा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ हर रोज, आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ultimately his story becomes one of triumph because the tale of his life will live on even after his death. His death. So, ultimately his story becomes one of triumph. Triumph मतलब victory. ठीक है? Ultimately मतलब आखिरकार उसकी स्टोरी बनी, क्या बनी? वन ऑफ द ट्रायम्फ, एक जो विक्ट्री है उसमें से एक स्टोरी उसकी भी बनी। जितनी भी जीत हुई होगी तो उसकी वो स्टोरी बन गई अल्टीमेटली। ये किसी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, यू विल नो दिस सेंटेंस इन अपकमिंग चैप्टर्स। क्यों? बिकॉज द टेल ऑफ हिज लाइफ विल लिव ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ। तो जो टेल है मतलब उसकी जो बातें है बताने वाली, ठीक है, टेल ऑफ हिज लाइफ, उसकी जो जीवनी अभी तक हुई है वो हमेशा रहेगी, विल लिव ऑन, ठीक है, हमेशा जिंदा रहेगी इवन आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद भी वो बातें हमेशा जिंदा रहेगी। इतनी उसने सक्सेस पा लिया। ओके, सो अगर आपको मेन क्लॉज समझ में नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ढूंढना सेंटेंस में कोई कंजंक्शन है क्या, बिकॉज है क्या, सो है क्या, एंड है क्या, एज सून एज है क्या,
या whenever, whatever, ऐसे कुछ कंजंक्शंस है, वो है क्या, वो दिखा, मतलब उसके बाद जो सेंटेंस बनता है, क्लॉज बनता है, वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और उसे हमेशा अंडरलाइन करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। अगर दोनों पूछे हैं तो अंडरलाइन करो और लिखो कि वो कौन सा क्लॉज है। तो बिकॉज के बाद जो सेंटेंस बचा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उसके जीवन का हिस्सा बनी थी, वो हमेशा जिंदा रहेगी उसके रहने मरने के बाद भी। क्योंकि का रीजन कहाँ गिवन है, मेन क्लॉज में। तो क्योंकि अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ द ट्रायल, उसकी जो कहानी है वही एक सक्सेस बन गई थी। सो अल्टीमेटली हिज स्टोरी इज अ सब्जेक्ट, बिकम्स बन जाना इज अ वर्ब, वन ऑफ द ट्रायम्फ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ये तीनों मिलकर हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ द ट्रायम्फ, उसकी जो कहानी है वो क्या बनी, एक विक्ट्री का एक जो जितने भी उसने अभी तक जीते होंगे, युद्ध कह सकते हैं, या जो भी चीजें उसने जीती होगी वो उसमें से एक बनी, जीतने वालों में से एक बनी। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो एक्शन हो रही है, सब्जेक्ट जो कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, तो ये हो जाएगा मेन क्लॉज। कहां तक मेन क्लॉज बनेगा, करेक्ट, जब तक कंजंक्शन नहीं आ जाता है तब तक मेन क्लॉज, और उसके बाद बचा हुआ कंजंक्शन से आगे जो सेंटेंस, जो क्लॉज बचता है, सेंटेंस का हिस्सा बचता है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इतना आसान है पहचान, ठीक है। मैं एक ट्रिक बताऊंगी छोटी सी कि कंजंक्शंस को याद कैसे करते हैं, ठीक है, एक आध एग्जांपल के बाद। इंडिया मैनेज्ड just 6 medals in 2012 Olympics even though मतलब जबकि we are a nation of 1.3 billion people, क्या कहते हैं सेंटेंस, इंडिया मैनेज, इंडिया ने सिर्फ 6 मेडल्स जीत चुकी थी। मैनेज का मतलब समहाउ वो 6 मेडल्स जीत चुकी थी, किसमें, 2012 के ओलंपिक्स गेम्स में। इवन दो, जबकि हम, कितनी पॉपुलेशन है हमारी, ये सेंटेंस जब जिस चैप्टर का है उसके अकॉर्डिंग ये है, 1.3 बिलियन लोग हैं, और 1.3 बिलियन लोग होने के बाद मेडल्स कितने आए, 6, ठीक है, ऐसा है। लेकिन इसमें मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानना है तो क्या देखना पड़ेगा, कंजंक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेंटेंस रहेंगे या 2 क्लॉजेस रहेंगे, एक होगा मेन क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट थॉट देगा, और दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लॉज जो कंप्लीट थॉट नहीं देगा, पहले वाले या उस वाले सेंटेंस पर, उस वाले क्लॉज पर डिपेंड करेगा। सो मुझे एक कंजंक्शन दिख रहा है, इवन दो, इवन दो, टिल, अनटिल, as soon as, no sooner that, not only but also, ऐसे कुछ कंजंक्शंस, ठीक है। सिंस है, बिकॉज है, वॉट है, कंजंक्शन इज वॉट, इस रिलेटिव कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आई टेल यू जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। सो इवन दो दिख रहा है, मतलब इवन दो के बाद जो, इवन दो से शुरू हुआ जो क्लॉज है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज।
सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो बचा हुआ क्या होगा? मेन क्लॉज होगा। लेकिन इसका मीनिंग चेक कर लेते, क्या ये कंप्लीट थॉट देता है? इवन दो, जबकि हम क्या है, नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, जबकि हम 1.3 बिलियन लोग हैं, जबकि हम 1.3 बिलियन लोग हैं, तो क्या जबकि है मतलब कुछ तो इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडिया मैनेजेस 6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स। इंडिया ने सिर्फ 6 मेडल जीते थे 2012 के ओलंपिक्स में। इवन दो, अब मीनिंग कंप्लीट होता है, इवन दो वी आर नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। सो ये जो हिस्सा है क्लॉज का, ये कहलाएगा मेन क्लॉज, जिसमें इंडिया क्या है? सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट के बाद क्या बचता है हमारे पास? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में दो चीजें होती है क्या? एक होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। करेक्ट। आया समझ में? इसके लिए और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। सो मैं कुछ सेंटेंस आपको फॉरवर्ड करूंगी, आपको सिर्फ चेक करना है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इतना करो, इसकी प्रैक्टिस बहुत करो। सो आगे चलकर आपको जो इसके सब टाइप्स आने वाले हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So thank you very much. We'll meet for this particular topic in next video lecture. Thank you.